So today we are going to discuss more on constructor overloading and destructor के destructor कैसे हम यूज करते हैं। तो लास्ट टाइम का जो हमारा प्रोग्राम था उसी को ही हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, उसी को ही हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि ओवरलोडिंग कैसे हो रही है एंड प्लस डिस्ट्रक्टर जो है वो कैसे जो है वो अपना काम जो है वो प्ले जो है वो कर रहा है। तो हम अपना प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। प्रोग्राम का नाम हमारा था कॉन डॉट सी पी पी। इट्स नॉट अवेलेबल, सो देखते हैं जी। ओके, कोरिलेशन का है ओपन। तो मे बी इट इज समवेयर एल्स, तो हम नया प्रोग्राम बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं जी, न्यू। इसको सेव कर लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं जी कॉन वन डॉट सी पी पी। प्रोग्राम टू illustrate the role of constructor and the destructor। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का रोल जो है उसके लिए हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं। इंक्लूड आयु स्ट्रीम डॉट एच, इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। एक क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम रख देते हैं से स्टूडेंट। इसमें वेरिएबल ले लेते हैं जी रोल नंबर। रोल नंबर आ गया वेरिएबल एक इसका। दूसरा इसका आ गया जी हम मार्क्स। एक रोल नंबर ले लेते हैं, एक हम मार्क्स ले लेते हैं। बस दो ही जो इसके हैं वो हम ले लेते हैं जी। ओके, जो प्राइवेट इसके डाटा मेंबर हैं वो हम दो स्पेसिफाई कर देते हैं। ओके, अब इसका बना लेते हैं जी हम पब्लिक फंक्शंस। तो पब्लिक स्पेसिफायर हमने यूज किया है। So we are using different way of entering information in these two data members. So first of all, we are using this one in method, and we are messaging enter the value of roll number and marks. We are using C in, value will be stored in the data member roll and marks. Okay, now we are using one more function, that is out function. These are normally member functions of class student, and we are displaying roll number equal to roll and marks equal to marks. Okay, now we are creating one constructor. So constructor name is student because it is same as the name of the class, and here we are simply entering roll number equal to marks equal to say 0, and we are closing it. Now we are again creating one more constructor, and it will be enter using two variables. Say a is equal to 0 and b, and say marks equal to b. Now we are again creating one more constructor, that is
that is say student. Now this constructor again takes two value as input. One is A, another one is B, and we are assigning A to roll number and B to marks. Now we are creating destructor. How can we create the destructor? We have to use the tilde function, and using tilde function we can create the destructor. Student, and we can simply write cout object destroyed. So this how we are creating the few constructor in this program. Now we are defining the main function, and in the main function we are simply defining few objects, student class objects s1 comma s2 comma s3 example, and we are simply using this clear screen function to clear the screen, and then we are calling out method with s1 s out. We are using out method with s2. We are using out method with s3. So this means we are basically created the three objects, and we are calling the member function out with these three objects. तो इसको हम कर लेते हैं जी सेव, इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं एरर कितनी हमारे पास आई हैं. सो डिक्लेरेशन इनकरेक्ट, तो वी आर हैविंग एरर्स. एरर यहाँ पे क्या है कि हमने सेमीकोलन लगा दिया है. So again we will compile it. One error. Again we are using this semicolon, so that's why, because it's function definition, not function declaration. So we are running this function. So we are getting roll number 0, marks 0, roll number 0, marks 0, roll number 0 and marks 0. So this mean to say कि आपके तीन आपने ऑब्जेक्ट बनाए थे, आपके तीन आपने बनाए थे अपने तीन आपने बनाए थे जी ऑब्जेक्ट बनाए थे तीन आपने, और वो जो ऑब्जेक्ट थे तीन, उन्होंने जब वो बने हैं तो उनके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप चला है, और उसने S1 के लिए भी रोल नंबर और मार्क्स 0 कर दिए, S2 के लिए भी रोल नंबर और मार्क्स 0 कर दिए, और S3 के लिए भी रोल नंबर मार्क्स जो है वो 0 कर दिए. मतलब कि ये जो आपका कंस्ट्रक्टर था, दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा ये ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो अपने आप जो है वो एग्जीक्यूट जो है वो हो पाएगा. अब ऑल्ट F5 हम करके देखते हैं, तो आप देखो 3 बार लिखा आ रहा है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड. ये 3 बार क्यों लिखा आ रहा है? इसका मतलब है कि प्रोग्राम चलने के बाद जो मेमोरी कंस्ट्रक्टर ने एलोकेट करवाई थी आपके ऑब्जेक्ट्स को, डिस्ट्रक्टर जो था वो भी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए उतनी बार ही चला, और उसने जो मेमोरी कंस्ट्रक्टर ने एलोकेट की थी वो उससे डी एलोकेट कर दी. तो ये जो था आपका फंक्शन, डिस्ट्रक्टर का नेम भी सेम आपकी क्लास के और कंस्ट्रक्टर के नेम के जैसा ही है, बट इसके आगे जो है वो टिल्ड का फंक्शन जो है वो साइन लगा होता है. प्लस ये फंक्शन भी अपने आप चलता है, लेकिन ये कब चलता है? जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है. मीन टू से
कि जो मेमोरी कंस्ट्रक्टर ने एलोकेट करवाई थी आपके ऑब्जेक्ट को, वो मेमोरी ये जब आपका प्रोग्राम खत्म होता है तो उन ऑब्जेक्ट से वो मेमोरी डी एलोकेट कर लेता है। अब हमें कैसे पता लगा कि मेमोरी डी एलोकेट हो गई है? क्या वाकई डिस्ट्रक्टर चला? देखो, अगर डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के लिए चला होगा तो स्क्रीन पे लिखा आएगा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। कितने ऑब्जेक्ट बने हैं? 3 ऑब्जेक्ट बने हैं। जैसे कंस्ट्रक्टर हर एक ऑब्जेक्ट के लिए चलता है, ऐसे डिस्ट्रक्टर भी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए चलता है। तो 3 बार स्क्रीन पर आना चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। तो अगर मैं अपनी पुरानी स्क्रीन देखूं ऑल्ट F5 करके, तो आपको नजर आ रहा है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। ये 3 बार क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि हमने 3 कंस्ट्रक्टर बनाए थे, और सॉरी, हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए थे। तो तीनों ऑब्जेक्ट के लिए ये डिस्ट्रक्टर जो है वो 3 बार चला, और उसने इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को जो मेमोरी एलोकेट हुई थी वो उनसे डी एलोकेट कर दी। तो दिस इज हाउ कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो अपने आप चल पड़ता है जब ऑब्जेक्ट बनता है, और जब प्रोग्राम खत्म होता है तो जो डिस्ट्रक्टर है अगर आपने बनाया हो तो वो उन ऑब्जेक्ट्स के मेमोरी जो है वो अपने आप उनसे डी एलोकेट करवा देता है, और ये ऑब्जेक्ट के खत्म होने पर, एंड होने पर जो है वो रन करता है। तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर बात की कि हमने यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलाया है, लेकिन अगर हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है जी S1 नाम का, एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया है S2 नाम का। तो इसको मैंने वैल्यू दे दी है 11 एंड से समथिंग लाइक दिस। तो ये यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर चलेगा, लेकिन वो कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा? वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर चलेगा, क्योंकि इस अब जब ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं तो साथ में 2 वैल्यूज जो हैं वो भी हम पास कर रहे हैं। यहाँ पर एक और हमारे पास एग्जांपल आती है कि हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है, पर इस ऑब्जेक्ट के साथ हमने वैल्यू सिर्फ एक पास करवाई है। तो दिस मीन टू से कि अब यहाँ पर 3 हमने कंस्ट्रक्टर बनाए हुए हैं। एक कंस्ट्रक्टर है जो कि अपने आप चल पड़ता है जब भी ऑब्जेक्ट आपका बनता है, और वो उसके डाटा मेंबर को वैल्यू 0 असाइन करवा देता है। एक कंस्ट्रक्टर तब चलेगा जब आप ऑब्जेक्ट बनाने के साथ एक वैल्यू पास करवाओगे, वो ये वाला कंस्ट्रक्टर होगा। और ये जो कंस्ट्रक्टर है वो आपका तब चलेगा जब आप ऑब्जेक्ट बनाने के साथ में 2 वैल्यूज पास कराओगे। तो मतलब कि कंस्ट्रक्टर का नाम सेम है, कंस्ट्रक्टर तो एक ही है। कई बार वो 0 वैल्यू असाइन करवाता है, कई बार वो एक वैल्यू करवाता है, कई बार वो 2 वैल्यू असाइन करवाता है। तो दिस मीन टू से दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। आपने एक कंस्ट्रक्टर आपका एक से ज्यादा आपको काम करके दे रहा है, एंड दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और कंस्ट्रक्टर क्या है? वो एक ऐसा फंक्शन है, बेसिकली स्पेशल मेंबर फंक्शन, जो कि अपने आप चल पड़ता है जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो बनता है। और डिस्ट्रक्टर क्या है? जो अपने आप चल पड़ता है जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। और अगर यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि हम लोग ये बेसिकली यहाँ पर देखना चाह रहे थे कि भाई कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग कैसे होती है, प्लस कंस्ट्रक्टर जो है आपका वो दूसरे फंक्शन से कैसे अलग है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर एक फंक्शन हमने बनाया है यहाँ पर इन नाम का। ये भी डाटा मेंबर जो रोल नंबर और मार्क्स है उसमें वैल्यू जो है वो एंटर करवाता है। लेकिन अगर हमने इस फंक्शन को यूज करना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा? तो मैं एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ यहाँ पर। मैं उस ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूँ S2 नाम का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। और मैं करता हूँ एस सॉरी S2 नाम का पहले ही ऑब्जेक्ट बना हुआ है, S4 नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो मैं बनाता हूँ कि S4 नाम का ऑब्जेक्ट, और मैं अब S4 के लिए क्या करता हूँ? S4 डॉट इन। तो इसके लिए मैंने इन मेथड कॉल किया। तो आप देखो, कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता। S1 S4 के लिए कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप चल पड़ेगा। S2 के लिए जो 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है वो चल पड़ेगा। S3 के लिए जो सिंगल पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है वो अपने आप चल पड़ेगा। उन्हें कॉल नहीं करना पड़ा। लेकिन जो नॉर्मल मेंबर फंक्शन है, चाहे वो इन था या आउट था, उनको डॉट ऑपरेटर की हेल्प से जो है वो कॉल करना पड़ता। तो ये एक फर्क आ जाता है कि जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल नहीं करना पड़ता, वो अपने आप चल पड़ता है। लेकिन जबकि दूसरा जो मेंबर फंक्शन है उसको ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर की हेल्प से आपको कॉल करना पड़ता है। तो अगर इसको हम कंपाइल करके देखें, देयर इज नो एरर, इसको अगर हम रन करें तो वो बोल रहा है कि एंटर द वैल्यू फॉर रोल नंबर एंड मार्क्स। ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि S4 के लिए हमने इनको कॉल किया और उसके अंदर वो मैसेज है, रोल नंबर 4 एंटर कर दिया, मार्क्स मैंने 56 एंटर कर दिया। तो अब उसने पहले S1 शो करवाया। S1 जो था वो डिफॉल्ट चला था, तो उसने 0 0 वैल्यू दे दी। S2 जो था उसमें मैंने 11 और 1 2 3 पास करवाया था, तो उसमें 11 एंड 1 2 3 आ गया आपका। जो S4 था उसमें मैंने सिर्फ मार्क्स पास कराए थे 6, रोल नंबर मैंने पास नहीं करवाया था, तो वो 0 और 6 आ गया। और S4 जो था
उसके लिए हमने कंस्ट्रक्टर यूज ही नहीं किया, हमने इन मेथड लगा के दोनों वैल्यूज पास कराई 4 एंड 56, तो वो जो है वो स्क्रीन के ऊपर आपके शो हो गई। अब एक चीज ये देखनी है कि क्या डिस्ट्रक्टर अब 4 बार चल रहा है, क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो चारों की मेमोरी डीएलोकेट होनी चाहिए और वो उनके लिए डिस्ट्रक्टर जो है वो चलना चाहिए। तो हम ऑल्ट F5 करके देखते हैं, तो आप देखो जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय है वो 4 बार लिखा आ रहा है, क्योंकि 4 आपके ऑब्जेक्ट बने थे तो उन चारों ऑब्जेक्ट के लिए ये डिस्ट्रक्टर चला और उसने उनको जो मेमोरी एलोकेट करवाई थी वो उनसे डी एलोकेट कर ली। तो ये जो एक छोटा सा हमने आज एक सैंपल किया है, इसमें हमने बेसिकली ये देखा है कि जो कंस्ट्रक्टर है और जो नॉर्मल आपके मेंबर फंक्शन है उनमें क्या डिफरेंस है, कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग कैसे होती है, कैसे हम अलग अलग पैरामीटर देके कंस्ट्रक्टर अलग अलग नंबर ऑफ टाइप या चेंज करके टाइप, या तो नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज करेंगे या पैरामीटर की टाइप चेंज करेंगे तो हम कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग कैसे कर सकते हैं। प्लस हमने ये देखा है कि जो डिस्ट्रक्टर है वो बेसिकली किस तरह चलता है, और वो जो मेमोरी है जो कंस्ट्रक्टर ने एलोकेट करवाई है ऑब्जेक्ट को उसको कैसे वो डी एलोकेट करता है। तो दिस वाज अबाउट द few of the options that we can use in case of the parameterized constructor, constructor overloading and the destructor। तो इसमें अगर आपके मन में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, पूछ सकते हो आप।